الیکشن کے حوالے سے بات کریں تو ایک شخص کو چوتھی مرتبہ وزیر اعظم بنانے کی سازش کی جا رہی ہے۔ آپ نے ووٹ کی طاقت سے ان کی نفرت اور تقسیم کی سیاست کو دفن کرنا ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا حیدرآباد میں جلسے سے خطاب۔ کہا انہیں عوام کی فکر نہیں، فکر ہے تو چوتھی بار کرسی پر بیٹھنے کی فکر ہے۔ آپ کو کہا جائے گا کہ پتنگ کو ووٹ دینا ہے تو آپ نے کہنا ہے ہم پاکستان مرد آباد اور را سے پیسے لینے والوں کو ووٹ نہیں دیں گے۔ ہمارا جو مخالفین ہیں وہ صرف اور صرف سیاسی انتقام لینے جانتے ہیں اور اس کا نقصان اس ملک کا ہو رہا ہے، مگر ان کو فکر نہیں، ان کو احساس نہیں۔ اگر ان کو فکر ہے تو صرف اس بات کی کہ انہوں نے کسی نہ کسی طریقے سے چوتھی بار اس کرسی پر بیٹھنا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ہم اس چوتھی بار وزیر اعظم بننے کا جو سازش ہے وہ ہم روکے تو آپ کو اس تیر پہ تھپا لگانا پڑے گا۔ آپ کو کہا جائے گا کہ پتنگ پہ ووٹ لگانا ہے، آپ نے کہنا ہے کہ ہم رو سے پیسہ لینے والے اور پاکستان میں سیاست کرنے والے کو ووٹ نہیں دیتے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی کا مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف کو منازع کا چیلنج۔ صدر مسلم لیگ نون شہباز شریف نے بلاول بھٹو پر پلٹ کر وار کرتے ہوئے انہیں موازنے کا چیلنج دے دیا۔ کہتے ہیں مناظرہ بھی ہو جائے گا، لیکن کل کی بارش سے لاہور اور کراچی کا موازنہ ہو گیا ہے۔ کراچی میں ٹھاٹھے مارتا سمندر تباہی کا منظر پیش کر رہا تھا۔ مائیں بہنیں گھٹنے گھٹنے پانی سے گزر رہی تھیں۔ اگلا الیکشن پاکستان کی قسمت کا فیصلہ کرے گا۔ عوام ہماری کارکردگی دیکھ کر 8 فروری کو ووٹ دیں گے۔ میرے مہربان کئی ہفتوں سے تکرار سے کہہ رہے ہیں کہ مناظرہ ہونا چاہیے، مناظرہ ہونا چاہیے، اور میں تکرار سے کہہ رہا تھا کہ موازنہ ہونا چاہیے، مناظرہ بھی ہو جائے گا۔ کل موازنہ ہو گیا۔ کل کراچی میں ٹھاٹھے مرتبہ سمندر پانی میں جس طرح ایک تباہی کا منظر پیش کر رہا تھا، مائیں بہنیں اپنے گھٹنے گھٹنے پانی میں گزر رہی تھی، گاڑیاں پھنسی ہوئی تھی۔ تو اگر ایک کلیئر مینڈیٹ 8 فروری کو عوام دیتے ہیں، جو کہ مجھے لگ رہا ہے ان جلسوں کے بعد، تو انشاءاللہ یہ پاکستان کے لیے بہت بڑی ایک اللہ کی رحمت ہوگی۔ تلنگانہ میں پاکستان پیپلز پارٹی کا پاور شو۔ شریک چیئرمین آصف علی زرداری نے جیالوں کا لہو گرمایا۔ کہا پیپلز پارٹی غریب کے دل کی آواز کو سمجھتی ہے۔ ہم نے غریبوں کی مدد کے لیے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کارڈ شروع کیا۔ ہماری حکومت میں اتنی غربت نہیں تھی، ہم نے اپنے دور میں تنخواہوں میں 100% اضافہ کیا۔ آج جتنی مرضی تنخواہیں بڑھا دیں، گزارا مشکل ہو رہا ہے۔ ضلع تلنگانہ کی پسماندہ دور کرنے کے لیے یہاں کے مقامی انتظامی افسران کی تعیناتی کریں گے جو مسائل سمجھتے ہوں، تاکہ یہ ضلع بھی ترقی کرے۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ جو غریب کی دل کی آواز ہوتی ہے وہ ہم پہلے ہی سمجھتے ہیں، پہلے ہی محسوس کرتے ہیں۔ یہی محسوس کرتے ہوئے ہم نے بی بی صاحبہ کے نام سے ایک کارڈ جاری کیا جو عورتوں کو ان کا حق ملتا ہے، غریب عورتوں کو۔ میں نے 100%، 100% ہر چیز کی تنخواہیں بڑھائیں، مگر آج وہ دن ہے کہ ہم کو 4 دفعہ ہم بڑھائیں تو بھی قیمتیں نہیں پہنچتی۔ یہاں پانی کی ضرورت ہے، مجھے پتہ ہے، یا انفراسٹرکچر کی ضرورت ہے، مجھے پتہ ہے، یہاں آپ کو پاسپورٹ آفیسز کی ضرورت ہے، مجھے پتہ ہے، یہاں آپ کو ڈپٹی کمشنر کا دفتر چاہیے، یہاں آپ کو کمشنر کا دفتر چاہیے، مجھے پتہ ہے۔ یہ سب چیزیں میرے سوچ میں ہیں اور انشاءاللہ آپ کو کر کے دیں گے۔ جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کی ایک بار پھر بانی پی ٹی آئی پر تنقید۔ کہا آج تہذیب کا دشمن جیل میں پڑا ہے، آج ان پر ایسے مقدمات بن رہے ہیں جن کا ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے۔ ریاست مدینہ کے حوالے سے ان کی کوئی سوچ نہیں تھی، اب جب قانون حرکت میں آیا تو کہتا ہے جھوٹے مقدمات ہیں۔ آج ہماری سالانہ ترقی کو اس شخص نے منفی تک پہنچایا۔ پاکستان کو یہ شخص 7 ٹکڑوں میں تقسیم کرنا چاہتا تھا۔ مفت علاج ہر شہری کا بنیادی حق، صحت کی سہولیات فراہم کرنا ہماری اولین ترجیح۔ پیپلز پارٹی رہنما آصفہ بھٹو کا صادق آباد میں جلسے سے خطاب۔ کہا سندھ کے اسپتالوں میں شہریوں کا مفت علاج معالجہ ہوتا ہے، جنوبی پنجاب کے ہر ڈسٹرکٹ میں اسپتال بنا کر دیں گے۔ سیلاب متاثرین کے لیے سندھ میں 20 لاکھ گھر بن رہے ہیں، بلاول اقتدار میں آئے تو 30 لاکھ گھر بنائیں گے۔ ہم جنوبی پنجاب کی محرومیوں کا خاتمہ کریں گے۔ ہمارا پرائمری فوکس صحت کی طرف تھا
کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ آپ کا بنیادی حق ہے۔ ہم نے ہاسپٹلز قائم کیے ہیں جو بالکل مفت علاج کرتے ہیں۔ ہم یہ آپ کے لیے بھی کرنا چاہتے ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری عوام کے ساتھ کھڑے تھے، اس کی مدد سے آج سندھ بھر میں 20 لاکھ گھر بن رہے ہیں، اور نہ صرف گھر بن رہے ہیں، لوگوں کو مالکانہ حقوق بھی دے رہے ہیں۔ ہم انشاءاللہ تعالی حکومت میں آ کر جنوبی پنجاب کی محرومیت کو خاتمہ کریں گے۔ شہری کراچی کی سیاست میں بڑی ہلچل، ماضی کے سخت ترین مخالف اتحادی بن گئے۔ ایم کیو ایم اور عوامی نیشنل پارٹی نے مشترکہ سیاسی سفر شروع کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ ایم کیو ایم کا PS88 پر ANP امیدوار کی حمایت کا اعلان۔ ڈپٹی کنوینر ایم کیو ایم مصطفیٰ کمال کہتے ہیں دونوں جماعتیں ایک نئے اور اچھے رشتے کی بنیاد رکھ رہی ہیں۔ کراچی سے منظر رضوی کی رپورٹ دیکھیے۔ مردان ہاؤس کراچی میں مشترکہ نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے ایم کیو ایم کے سینئر ڈپٹی کنوینر مصطفیٰ کمال کا کہنا تھا بیرونی اور اندرونی دشمن اپنے مفاد کے لیے اردو اور پشتو بولنے والوں کو لڑواتی رہیں، مگر اب ہم ایک ہیں اور ہمارا پیچھے ہٹنے کا کوئی ارادہ نہیں۔ اور مہاجر اور پختون انشاءاللہ تعالی آئندہ آنے والی ساری نسلوں تک انشاءاللہ تعالی جب تک پاکستان ہے اور تا قیامت ہے انشاءاللہ تعالی ہم یہاں سے اچھا ہی ہوگا اور بہتر ہوگا، اور یہاں سے پیچھے مڑنے کا کوئی ہمارا راستہ نہیں ہے، ہم ایک ہیں۔ ANP سندھ کے صدر شاہد سید کا کہنا تھا اللہ نے میری زندگی میں یہ کام کر دیا۔ ANP کے کارکنوں سے کہوں گا وہ بھی ایم کیو ایم کی مدد کریں۔ میرے لیے عزت کی بات ہے، خوشی کی بات ہے کہ میرے حیاتی میں یہ کام ہو رہا ہے۔ جس طرح سے انہوں نے ہمیں ایک سیٹ کی آفر کی، ہمیں عزت بخشی، میں ہی سمجھتا ہوں کہ وہ سیٹ بھی اگر نہ دے اور یہ صرف آگے جو لفظ بولے، میرے لیے اس کی قیمت ویلو نہیں ہے، میرے لیے میرے نسل کے لیے نہیں۔ جو محبت بھائی چارے کی جو عزت دی ہے اور میری وجود کو تسلیم کیا، میرے لیے سب سے زیادہ عظیم لمحہ یہی ہے۔ ANP اور ایم کیو ایم کے رہنماؤں نے انٹر بورڈ کے رزلٹ کے حوالے سے کہا معاشرے میں تعلیم کو بہت نقصان پہنچا ہے۔ کیمرامین اسامہ صدیقی کے ساتھ منظر رضوی، سچ نیوز کراچی۔ پیٹرن ان چیف استحکام پاکستان پارٹی جہانگیر ترین نے نواز شریف کو اپنا لیڈر قرار دے دیا، بولے اللہ عقاب اور نون لیگ کی جوڑی کو کامیاب کریں۔ انشاءاللہ ہماری حکومت بنے گی، سب نے مل کر ملکی معیشت کے لیے کام کرنا ہے۔ 8 فروری کے بعد معیشت کو چمکائیں گے، لاکھوں کی تعداد میں نوکریاں دیں گے۔ جتنا میں نے لوگوں پر خرچ کیا ہے اللہ نے مجھے اس سے زیادہ دیا ہے۔ ہمیں کامیاب ہونے کے لیے آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ حکومت بنے گی، انشاءاللہ تعالیٰ میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ہمارے لیڈر ہوں گے اور میں ان کے ساتھ کام کرنے میں بڑا خوش ہوں گا۔ لاکھوں کی تعداد میں مزید نوکریاں بنیں گی، ان کو روزگار ملے گا۔ صرف اپنے لیے کام کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ دے دیا ہے۔ جب مجھے اللہ تعالیٰ نے اتنا کچھ دیا میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ جتنا میں نے لوگوں پہ خرچ کیا، اسکول بنائے، ہسپتال بنائے، جو بھی کیا، اس طرح زیادہ اللہ تعالیٰ نے برکت ہے۔ سب سے زیادہ ضروری چیز ہے وہ ہے کہ آپ لوگ مل کے دعا کریں کہ ہم کامیاب ہیں۔ دنیا نے چاند پر قدم رکھ لیا ہے اور ہم 2 خاندانوں کی سیاست میں پس رہے ہیں۔ امیر جماعت اسلامی کی نون لیگ اور پیپلز پارٹی پر تنقید، کہا کشمیر کی آزادی کے لیے کیا کیا، عافیہ صدیقی کو واپس لانے کے لیے کیا کیا، فلسطین کے حق میں ہمارے حکمرانوں نے ایک لفظ تک نہیں کہا۔ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون امریکی خوف کی وجہ سے خاموش رہے۔ 8 فروری کو ان کی سیاست کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنا ہوگا۔ دنیا نے چاند پر قدم رکھا، مریخ کی طرف جا رہی ہے، اور ہم پھر 2 خاندانوں کی سیاست میں پنس گئے ہیں۔ انشاءاللہ میری قوم، باشعور قوم، باضمیر پاکستانی 8 فروری کو پیپل پارٹی اور مسلم لیگ کی سیاست کو پولنگ سٹیشن میں ہمیشہ کے لیے دفن کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ کتنے باریاں آپ نے لے لی، آپ نے کشمیر کے آزادی کے لیے کیا کیا، آپ نے بہن عافیہ کو واپس لانے کے لیے کیا کیا، آپ نے فلسطین کے آزادی کے لیے ایک جلوس بھی نہیں نکالا۔ نون لیگ کی خواتین کا نیا سیاسی ٹرینڈ، لاہور کے حلقہ NA 119 میں خواتین کی موٹر سائیکل ریلی، خواتین بائیکرز نے لاہور کی مختلف سڑکوں، بازاروں اور محلوں کا چکر لگایا۔
खवातीन बाइकर्स ने गले में मुस्लिम लीग नून के मफलर्स पहन रखे थे। खवातीन कारकुनान ने मरीम नवाज शरीफ की तस्वीर भी उठा रखी थी। मरीम नवाज एन ने 119 लाहौर से कौमी असम्बली के उम्मीदवारों के तौर पर इलेक्शन लड़ रही हैं। बैक NA 127 लाहौर में पीपल्स पार्टी के इलेक्शन ऑफिस पर हमले का मामला। इलेक्शन कमीशन ने इब्तदाई रिपोर्ट की रोशनी में जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत कर दी है। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन की जानिब से एलामिया जारी किया गया है कि थाना कोट लखपत के इलाके में पीपल्स पार्टी के इलेक्शन ऑफिस पर हमले की DIG ऑपरेशन लाहौर की इब्तदाई रिपोर्ट का जायजा लिया गया। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने चीफ सेक्रेटरी पंजाब को मिरासला इंस्टॉल कर दिया। पीपल्स पार्टी ने नून लीग से अताताड़ को लगाम डालने का मुतालबा कर दिया। खवातीन रहनुमा कहती हैं, हमारे दफ्तर से 3 कारकुनों को अगवा किया गया। हम खामोश हैं कि इलेक्शन पुरअमन हो। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को इस अमल का नोटिस लेना चाहिए। अब हम तैयार हैं, अब ये हमारे दफ्तर आकर दिखाएं, अब जियाले इनका रास्ता रोकेंगे। एक ऐसा शख्स जो कि एक वीडियो के जरिए इकबाल जुर्म कर चुका हो, इतराफ जुर्म कर चुका हो, जो बता चुका हो कि मैंने गुंडागर्दी की है, जो बता चुका हो कि मैंने डाका जनी की है, जो बता चुका हो कि मैंने अगवा किया है, उसको फौरी तौर पर नाअहल करार दिया जाए। अताउल्लाह तारड़ को जो बदमाशी कर रहा है, जो गुंडागर्दी कर रहा है, जिसको अपनी शिकस्त नजर आ रही है, जो कि इस हलके में NA 127 में एलियन है, अजनबी है, उसको कोई शनाख्त नहीं है, वो असले की बुनियाद के ऊपर, वो गुंडागर्दी की बुनियाद के ऊपर सिर्फ अनरेस्ट क्रिएट करना चाहता है, हरासमेंट करना चाहता है। वो खौफजदा है, वो चाहता है कि वोटर्स को भी खौफजदा करे ताकि वो बाहर ना निकले। वो चाहता है कि जो पर्चियां हैं पोलिंग बूथ की, वोटर्स की पर्चियां, वो किसी को तकसीम ना हो। तो अताउल्लाह तारड़ साहब, आप जो ये कर रहे हैं, इसके आपको नताइज भुगतने होंगे और इलेक्शन कमीशन को फौरी तौर पर इसका नोटिस लेना चाहिए है। अगर इलेक्शन कमीशन के कवायद और ज़ाब्ते की खिलाफ वर्जी हुई है तो उसकी कवायद और ज़ाब्ते की खिलाफ वर्जी के खिलाफ के मुताबिक जो एक्शन लेना चाहिए वो फौरन लें, ना अहल करार दें इस शख्स को, क्योंकि ये शख्स अमन व अमान का मसला पैदा करना चाह रहा है। नून लीग और पीपल्स पार्टी आमने सामने। अताताड़ ने बिलावल भुट्टो जरदारी को चैलेंज और मुनाज़े की दावत दे दी। इल्जामात साबित होने पर इलेक्शन से दस्तबरदार होने का भी ऐलान कर दिया। बोले बिलावल भुट्टो जरदारी वोट खरीदना चाहते हैं। बिलावल ने जिद में लाहौर का हल्का मुंतखब किया। पीपल्स पार्टी के दफ्तर से नोट गिनने वाली मशीन मिली। पीपल्स पार्टी ने 50 से 60 हज़ार वोट खरीदने का प्लान किया। वोटों की खरीदारी जारी है और वोट खरीदे जा रहे हैं और कतारें लगवा के लोगों को लाया जा रहा है कमीशन दे के कि जी आके आप अपना आईडी कार्ड हमें दें, ऐप में हम आपका वो एंटर करेंगे नाम, तो ये 2500 या 5000 रुपए के वजह आप अपना आईडी कार्ड जमा कराएं और मुकद्दस किताब पे हाथ रख के ये हल्फ दें कि आप पीपल्स पार्टी को वोट देंगे। और वहाँ पे जब हम अंदर पहुँचे, जहाँ पे ये सारी कार्रवाई हो रही थी, तो वहाँ से एक नोट गिनने वाली मशीन मिली जिसमें बाकायदा 7 नोटों के ढेर लगे हुए थे। उसके साथ आईपैड थे जिसके अंदर ऐप फीड थी और आईडी कार्ड नंबर दर्ज किए जा रहे थे। आईडी कार्ड की कॉपीज थी और कुछ रसीदें थीं जो दी जा रही थीं। तो ये आंखों देखा हाल है। कैमराज मेरे साथ थे, टीवी चैनल्स वाले मेरे साथ थे, और हमने जब ये चीज़ें सारी पकड़ी तो आप यकीन माने रोंगटे खड़े हो गए कि यार ये मजहबी किताबें क्या इसलिए होती हैं कि आप इन पे हाथ रख के लोगों से हल्फ लें। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हार मान चुके हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ये इलेक्शन हार चुके हैं और हमें वाज़े बरतरी हासिल है। उन्होंने घबरा के और एक तारीखी शिकस्त से डरते हुए अल्लाह के फजल से उन्होंने ये काम किया। मखसूस सियासी जमात के शरपसंदों की जलसे की आड़ में करक में शरपसंदी। अंबेरी कला करक में जलसे के दौरान सियासी जमात के शरपसंदों की पुलिस के साथ झड़पें हो गईं। सियासी जमात ने इंतजामिया से जलसे की इजाज़त नहीं ली थी। पुलिस ने मना किया तो मखसूस सियासी जमात के शरपसंदों ने पुलिस पर धावा बोल दिया। रुक करेंगे कराची का, तो कराची में अरबाब इख्तियार और इंतजामिया के सब अच्छे के दावे बारिश के पानी में बह गए। बारिश से शहर पानी पानी हो गया। नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। शहरियों के लिए घर से बाहर कदम रखना मुहाल हो गया। सुबह सवेरे फिर से बादल बरस पड़े। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज फिर बारिश और जालाबारी का इम्तिहान है।
कराची शहर में इंतजामिया की गफलत और लापरवाही शहर को एक ही बारिश फिर ले डूबी। कराची के मुख्तलिफ शहरों में जाड़े ने खूब रंग जमाया मगर शहर पानी में डूबने को आया। निकासी आब का निजाम ऐसा हुआ दरहम बरहम कि सड़कें पानी पानी होकर शहरियों पर ढाने लगी सितम। कराची में सुबह सवेरे बादल बरसे, रात शहर के बेशतर इलाकों में बारिश बरसी। सरजानी में सबसे ज्यादा 62 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। रेड जोन और आई चंद्रीगढ़ रोड समेत कई इलाकों में पानी अब तक मेहमान है। सड़कों पर पानी जमा होने से ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर है। अंडरपासेज और नशेबी सड़कों पर गाड़ियां पानी में बंद हो गई हैं। गुज़श्ता रात बारिश में शहरियों को गाड़ियां पानी में छोड़कर घर जाना पड़ा। तूफानी बारिश के बायस CAA ने कराची एयरपोर्ट पर अलर्ट जारी कर दिया। बारिश बरसते ही K इलेक्ट्रिक ने भी शहरियों का साथ छोड़ दिया। बिजली की सप्लाई मुअत्तल होने से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। कन्वीनियर MQM डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने पीपल्स पार्टी को कराची का दुश्मन करार दे दिया। कहते हैं साबित हो गया शहर में कराची दुश्मन हुकूमत मौजूद है। एक बारिश ने सारी कारकर्दगी सामने रख दी है। मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं मेयर करप्ट है जिसके पास ना सलाहियत है ना ही किरदार। इलेक्शन जीत कर कराची की बल्दियाती हुकूमत को ख़त्म करेंगे। इन्हें मजीद 4 साल अपने ऊपर मुसल्लत नहीं रहने देंगे। MQM के मरकजी इलेक्शन ऑफिस पाकिस्तान हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना था 1 घंटे की बारिश के बाद शहर में तबाही थी। 15 बरसों से हुकूमत करने वाले घरों पे सोते रहे और कराची मदद को पुकारता रहा। जिन्होंने पूरे शहर में लिखा हुआ है कि शहर का हल सिर्फ हम, कल की बारिश के पानी में वो हल होके रह गए। का कोई आपने कल जब MQM की यहाँ निजामत थी, मेयर MQM के रहे हैं, इख्तियार या बा इख्तियार कम से कम सड़कों पे तो नजर आते थे, गाड़ियों को धक्का देते हुए तो नजर आते थे। सीनियर डिप्टी कन्वीनर मुस्तफा कमाल का कहना था कि साबित हो गया मेयर अगर करप्ट होगा तो उसे कितना ही पैसा दे दो शहर में कोई काम नहीं होगा। बोले हमने समंदर के अंदर पानी की लाइन डालकर दिखाई। उस जमाने की MQM हमने जमीन तो जमीन, हमने समुंदर में पानी की लाइनें डालकर जजीरों पे पानी की लाइनें पहुंचाई है। समुंदर में हमने उस जमाने की MQM ने आज लियारी में जो पीपल्स पार्टी के वोटर अगर रह गए हैं, वो जो पानी पी रहे हैं वो आज MQM के दौर के MQM के नाजिम का मेयर के दिए हुई लाइन से पानी पी रहे हैं। आप सब लोग गवाह हैं। MQM के रहनुमाओं का यह भी कहना था 8 फरवरी को नशिस्तें जीतने के बाद सबसे पहले यहाँ की बल्दियाती हुकूमत खत्म कर दी जाएगी। साबिक वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि MQM मुर्दा घोड़ा बन चुकी जिसको जिंदा करने की कोशिश की जा रही है। हैदराबाद के लोग पीपल्स पार्टी के चाहने वाले हैं। बिलावल भुट्टो वाहिद लीडर हैं जो अपना प्रोग्राम अपनी सोच बता रहे हैं, बाकी तो माजी में फंसे हुए हैं कि मुझे क्यों निकाला। हैदराबाद के लोग बड़ी तादाद में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ देख रहे हैं। मैं उनसे यही दरख्वास्त करूंगा, जैसे मैंने अभी कहा कि माजी को छोड़े, अपने मुस्तकबिल की तरफ देखें। पाकिस्तान का मुस्तकबिल बिलावल भुट्टो जरदारी है और इंशाअल्लाह ताला बिलावल भुट्टो जरदारी सबको साथ लेके चलने वाला लीडर है। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम उर रहमान ने कहा कि थोड़ी सी बारिश से कराची डूब गया। पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी सामने आ गई। KP और लाहौर में बारिश होती है, जिंदगी चलती रहती है। MQM पीपल्स पार्टी के साथ जुर्म में बराबर की शरीक है। जिसने मैंडेट वडेरों को बेचा, PP अरबों रुपए इलेक्शन मुहिम पर लगा रही है। कराची के हल्का NA 237 में मसाइल ने शहरियों का जीना जीरन कर दिया है। आने वाले इंतखाबात से वाबस्ता उम्मीदवारों की कहानी बता रही हैं किरण फातिमा। आम इंतखाबात नज़दीक आते ही सियासी सरगर्मियाँ उरूज पर पहुँची, जबकि घर घर मुहिम चलाने का आगाज़ भी शुरू हो गया। लेकिन कराची के मुख्तलिफ इलाकों में मसाइल की कहानी वहीं की वहीं है। अब इस मसाइल की क्या कहानी है और आवाम आने वाले इंतखाबात से क्या तवक्कुआत रखती हैं, आइए उन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं। ये तो सारी बारिशें देखते आ रहे हैं, यहाँ पे जितनी भी बारिश है, ये सारी दाढ़ी सफ़ेद हो गई, मूंछें सफ़ेद हो गई। इनको देखते देखते, कचरों को देखते देखते कौन सही करेगा? मैं थोड़ी सही करूँगा, ये लोग सही करेंगे। ये इंतखाब तो आते ही रहते हैं, 25 साल 50 साल से देखते आ रहे हैं इंतखाबों को। कौन से इंतखाब में डालोगे? कौन से इंतखाब को लोगे? जो इंतखाब उठाओगे वो इंतखाब बेकार है। तो मुश्किल, रोड रास्ते सही नहीं है, साफ नहीं है, ट्रैफिक गुजरने में, इनमें बच्चों में गुजरने में बहुत मुश्किलात होती है। भाई ये बारिश हो रही है, इसमें तो कीचड़ लाजमी होगी, क्यों कोई भंगी भी नज़र नहीं आ रहा है। भंगियों को बराबर तनख्वाह मिलती है
वो सुबह आना चाहिए, आते 11-12 बजे। उनको अगर सुबह लगते तो कोई कचरा नहीं नज़र आता, ना पानी नज़र आता। अभी पब्लिक निकल रही है, आवाम निकल रही है, सब कीचड़ में जा रही है, कोई खड्डे में गिर रहा है, कोई किधर गिर रहा है। केएमसी वाले भी सही तरह नहीं देख रहे हैं। जो हाई फाई एरियाज हैं जैसे गुलशन हो गया या गुलशन मेमार हो गया, डिफेंस हो गया, DHA हो गया, इन इलाकों में आपको जो है ना केएमसी वाले और DMC वाले दोनों मिलेंगे, ठीक है, इस वक्त काम करते हुए नज़र आएंगे। फिर ये जो गरीबों के इलाके हैं ना, इनमें आपको जो है ना बंगी नज़र आएगा, ना जमादार नज़र आएगा, ठीक है। जो गरीबों के मोहल्ले वहाँ पे कोई नज़रसानी नहीं है, सिर्फ वोटिंग मांग रहे हैं। बारिश बरसते ही कराची के हल्का NA 237 का निज़ाम भी सामने आ गया। शहर के दीगर इलाकों का हाल भी इससे कुछ मुख्तलिफ नहीं है, लेकिन अब देखना ये है कि यहाँ पर मसाइल को हल करने के लिए तराजू भारी आएगा, तीर चलेगा या फिर पतंग उड़ान भरेगी। कैमरामैन खालिद सलीम के साथ किरण फातिमा, सच न्यूज़, कराची। पीपल्स पार्टी की इंतखाबी मुहिम जोरों शोर के साथ जारी है। साबिक सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन के साहिबजादे रावल शर्जील मेमन भी सियासी मैदान में आ गए हैं। हैदराबाद जलसे में खिताब करते हुए रावल शर्जील मेमन ने कहा कि हैदराबाद पीपल्स पार्टी का गढ़ है। सिंध के अवाम एक बार फिर पीपल्स पार्टी को भारी अक्सरियत से कामयाब कराएंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी को वजीर आजम बनाएंगे। हमेशा की तरह इस बार भी हैदराबाद ने बिलावल भुट्टो का वालिहाना इस्तकबाल किया है। तो हमेशा हैदराबाद बाराड़ी चेयरमैन साहब जो हमेशा एक शानदार इस्तकबाल कयो है। अज भी ॾाढी खुशी थी तव्हां सभिनी खे हिते ॾिसी। ऐं चाहींदुमि पंहिंजी मेल मुलाक़ातूं थींदियूं रहंदियूं आहिनि। हाणे पाण सभु इंशाल्लाह पंहिंजे चेयरमैन जो इंतज़ारु कयूं ऐं इंशाल्लाह उनजो शानदार इस्तकबाल कयूं। इंशाल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो गढ़ है हैदराबाद पाण सभिनी जो है। इंशाल्लाह हैदराबाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खटनी। कौमी असम्बली का हल्का है NA 127 लाहौर, जहां पर वोटों की मुबैना खरीदो फरोख्त का मामला है। इलेक्शन कमीशन ने मामले का नोटिस ले लिया है। सजाद काज़मी से मज़ीद जानेंगे। जी सजाद बताइएगा। बिल्कुल ऐसा ही है। ये मुबैना तौर पर एक वीडियो सामने आई थी जिसमें NA 127 में वोटों की खरीदो फरोख्त का अमल जो है वो जारी है, उसमें नजर आता है, जिस पर इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये नोटिस ले लिया गया है। एडिशनल DG इलेक्शन कमीशन की तरफ से सूबाई इलेक्शन कमिश्नर को जो है वो खत लिख दिया गया है और उसमें ये कहा गया है कि वोट खरीदने के मामले की तहकीकात के लिए कमेटी तश्कील दी जाए और मामले की तहकीकात करके जामिया रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन को भिजवाई जाए। ये मामला NA 127 लाहौर में सामने आया, जहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की तरफ से एक दूसरे पर इल्जाम लगाए गए कि दोनों की तरफ से एक दूसरे पर इल्जाम ये लगाए गए कि वोटों की खरीदारी की जा रही है और जो लोगों की सजाद। लाहौर में शिया उलमा कौंसिल के ज़रिए तमाम फातह खैबर सेमिनार का इनेकाद किया गया। अज़ीमुश्शान सेमिनार में तमाम मसालिक के क़ाबरीन शरीक हुए। उलमा कराम का कहना था कि मुसलमान सीरत हज़रत अली अलैहिस्सलाम पर अमल पैरा होकर दुनिया और आखिरत की तमाम तर कामयाबी और कामरानी हासिल कर सकते हैं। सैयद वक़ार हुसैन की रिपोर्ट देखिए। मुस्लिम टाउन मोड़ पर शिया उलमा कौंसिल लाहौर की जानिब से फातह जंग खैबर सेमिनार हुआ, जिसमें तमाम मसालिक के अकाबरीन शरीक हुए और सीरत फातह खैबर अली अलैहिस्सलाम पर मुफस्सिल गुफ्तगू की। ए अली, काबा में पैदा होना जो शर्फ है सिर्फ अली को है, कायनात आलम में आदम से लेकर आज तक किसी को नसीब नहीं। हमें हज़रत अली मुर्तज़ा की तालीमात पर अमल करना चाहिए, सीखना चाहिए, और जब हम सीखेंगे, समझेंगे, तसव्वुफ़ को देखेंगे तो फ़िरका वारियत जो है वो फिर बाकी नहीं रहेगी। उलमा कराम का कहना था कि सीरत अली अलैहिस्सलाम उम्मत मुस्लिमा के लिए बेहतरीन नमूना है कि मेहराब में अली है तो मिंबर पे है अली, काबा गवाह, दोषे पैगंबर पे है अली। वो फतह ऐसी फतह थी कि आज 1400 साल बाद के यहूदी भी इस्लाम से उस जंग का बदला लेने के लिए कभी गजा में और कभी फ़लस्तीन में मुसलमानों के मुकाबले में खड़े हैं। शिया उलमा कौंसिल के रहनुमा चौधरी सगीर अब्बास विर्क का कहना था कि मुसलमान सीरत हज़रत अली अलैहिस्सलाम पर अमल पैरा होकर दुनिया व आखिरत की तमाम तर कामयाबी और कामरानी हासिल कर सकते हैं। अगर हम मुल्क को बहरानों से निकालना चाहते हैं, मुल्क की मैशत ये जो अफरा तफरी पड़ी हुई है, अगर सीरत अली मुर्तज़ा पे अमल करें तो इंशाअल्लाह मुल्क भी जन्नत नज़ीर होगा और ये सियासी इंतशार भी ख़त्म होगा। सेमिनार में हाफिज़ काजिम रज़ा नकवी, मुफ्ती सैयद आशिक हुसैन, अलामा आसिम मखदूम, अलामा मोहम्मद हुसैन गोलडवी, कासिम अली कासमी, लाल मेहदी, प्रोफेसर महमूद गजनवी, हिंदू रहनुमा भगत लाल खोखर और असद काजमी शरीक हुए। आखिर में मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए दुआ भी की गई। कैमरामैन अमजद अली जैदी के साथ सैयद वक़ार हुसैन, सच न्यूज़, लाहौर। हाजिर होते हैं कुछ देर में, देखते रहिए सच।